A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new chapter of class 11th accountancy, the chapter number 13, depreciation. You know very well in the last few videos we discussed chapter number 12, that is a bank reconciliation statement. In this chapter we discuss a lots of theoretical parts as well as the numerical part. That is the first of all we discuss what is BRS. Bank reconciliation statement is a statement which reconcile the difference between the cash book balance and the passbook balance. As well as we discussed the few important causes for the differences between the cash book bank balance and the passbook, which are number one, check issued but not presented for payment, check deposited but not collected by the bank, bank charges charged by the bank, amount directly deposited by the customer, amount paid by the bank on the standing order of the customer, as well as we discussed the two method of the preparation of the bank reconciliation statement. The first method which are related to the when we prepared a bank reconciliation statement without adjusting the cash book balance, and second method is when we prepared a bank reconciliation statement after adjusting the cash book balance. And you know very well, according to the latest notification given by the CBSE, the second method of preparation of the bank reconciliation statement, that is the preparation of BRS after adjusting the cash book balance, has been removed by the CBSE in the new curriculum of class 11th accountancy. So basically हमें BRS में सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करना था कि when we prepared a bank reconciliation statement without adjusting the cash book balance, यानी हमें adjusted cash book बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. And as well as we discussed in the last few videos the 5 important numerical problem related to the depreciation. The first two numerical problem related to the debit balance as per cash book. The third question is related to the credit balance as per cash book. The fourth numerical question related to the credit balance as a passbook, as well as the fifth one numerical question is related to the debit balance as a passbook, that is a overdraft balance. So with the help of these numerical question, we have to understand the concept of BRS, how we will prepare the bank reconciliation statement, and we completed the chapter number 12 bank reconciliation statement with the help of 5 numerical practical problems as well as the few important theoretical parts. After the completing chapter number 12, now we will move to the next chapter, that is a depreciation. Very common word used by every person, that is depreciation. We depreciate, decrease, decline. So such kind of word can be used in the place of the depreciation. And when we are talking about the depreciation, so this term express the meaning of the decline in the value of the assets. So frankly we can say that what is a basic meaning of the depreciation? So we can say that depreciation means decline in the value of fixed tangible assets. So basically अगर हम बात करें what is depreciation, so depreciation means decline in the value of the fixed assets. यानी जब किसी fixed tangible assets की वैल्यू घटती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, depreciation. Suppose fixed tangible assets means land, building, furniture, fixtures, motor car, as well as fixtures, plant and machinery. So ये सब fixed tangible assets हैं. इनकी वैल्यू ड्यू टू द एनी रीजन डिक्लाइन होती है, और ये जब डिक्लाइनमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन. So basically what is depreciation? In the simple word we can say the depreciation means decline in the value of the fixed tangible assets. Suppose you purchase a car
for himself, for the personal purpose or for the official purpose. So you can see that the value of the car reduced day by day. Suppose after the purchasing of the car, you want to resell your car to the another person. तो बेसिकली क्या आपको एग्जैक्टली उतना ही पैसा मिलता है जितना पैसा आपको मिलना चाहिए, जितने की आपने कार परचेस की होगी? नो सर. When we resell our fixed assets after using them, so we receive the less than the purchase value. In this situation, we receive the less than the purchase value. Suppose we purchase a car of rupees 5 lakh rupees, and after 1 year, after using it, when we resold these assets to the another person, so we received amount less than 5 lakh. यानी इस सिचुएशन में आपको 5 लाख रुपए से कम पैसा मिलता है. क्यों? Due to the depreciation. So depreciation is a very important part of the accounting, because when we use a various kind of fixed tangible assets in our business, so after day by day, after a year, after a month, the value of such fixed tangible assets reduced, and this is known as the depreciation. So basically, what is depreciation? So in the simple word, we can say depreciation means decline in the value of the fixed tangible assets. But apart from this, the various definition given by our different accountants, different thinkers. So what is depreciation? So let us study the different definition given by the different thinkers. The first definition given by Pickles, shown on your screen, that is, according to Pickles, depreciation is a permanent and continuing diminution in the quality, quantity or value of an assets. यानी जब किसी assets की value में, उसकी quality में या उसकी quantity में permanent and continue form में गिरावट देखने को मिलती है, reduce देखने को मिलता है, which is known as the depreciation. According to the Spicer and Pegler, depreciation may be defined as a measure of the exhaustion or effective life of assets from any cause during a given period. Spicer and Pegler ने depreciation के effective life, assets के effective life पे focus किया है. यानी according to the Spicer and Pegler, depreciation defined as a measure to exhaustion of the effective life on an asset. Suppose we purchase a duster for what purpose? You know very well. For removing the words shown in a whiteboard और ब्लैक बोर्ड, जो भी चीजों के लिए इसको यूज किया जाए. सो इसको हम जब परचेस करते हैं तो वी हैव अ माइंड सेट द इफेक्टिव लाइफ ऑन एयर एसेट. इस एसेट की कोई ना कोई इफेक्टिव लाइफ होगी. सपोज ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलेगा. लेकिन जब हम इस एसेट्स को परचेस करते हैं तो उसकी इफेक्टिव लाइफ कम होने लगती है. जब तक ये एसेट्स दुकानदार के पास पड़ा होता है, शॉपकीपर्स के पास होता है, तब तक इसकी लाइफ, इफेक्टिव लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसको हम यूज ही नहीं करते हैं. बट जब हम इसको यूज करते हैं, अपने पास लेकर आते हैं, सपोज इसकी लाइफ है 3 साल, 4 साल, तो जैसे ही हम इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइफ कम होने लगती है. यू नो वेरी वेल वाई. क्यों कम होने? क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, तो उस पर इसके इफेक्टिव लाइफ का एग्जॉर्प्शन होता है, विच इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन. एंड अनदर फेमस डेफिनेशन गिवन बाय द ICAI, according to the International Accounting Standard 4, depreciation is the allocation of depreciable amount of an assets and over its estimated useful life. Depreciation for the accounting period starts to net profit for the profit period either directly or indirectly. यानी IAS, International Accounting Standard 4 के अकॉर्डिंग इन depreciation जो होता है वो assets के ऊपर उसकी useful life तक का depreciable amount होता है. सपोज इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. सपोज यू परचेस सच एसेट्स. ये भूल जाना ये क्या एसेट्स है. सपोज ये आपके पास कोई एक एसेट्स है या कोई भी प्रीसियस एसेट्स है, तो आपने इसको 50,000 में परचेस किया और इसकी लाइफ है 5 ईयर. तो यू कैन सी डैट कि ये 5 साल चलेगा और इसकी आज की वैल्यू कितनी है? 50,000. तो आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 40,000. आफ्टर 3 ईयर, after 2 year 30,000, after 3 year 20,000, after 4 year 10,000, after 5 year 0. So you can see that when we purchase the any assets, suppose हमने किसी assets को फर्स्ट ईयर में परचेस किया
50,000 रुपीज में, तो एट द एंड ऑफ द 5 ईयर के लिए परचेस किया, सो आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 40,000, क्योंकि आप देखो तो एनुअल डेप्रीशिएशन जो चार्ज होगा वो कितना होगा 50,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी हर साल कितना इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा 10,000, क्योंकि 5 साल बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये यूजलेस हो जाएगा। सो द फर्स्ट ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी 40,000, सेकेंड ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30,000, थर्ड ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20,000, फोर्थ ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, और फिफ्थ ईयर के बाद तो यूजलेस हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो यू कैन सी दैट कि ईयर एंड ईयर आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है? ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द और बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। सो एट द एंड, to conclude the point of the depreciation, we can say that depreciation is a permanent, gradual and regular decline in the book value which of fixed assets is considered to suffer over a period of time on account of various causes. It is a very ideal definition. The first shortest ideal definition of depreciation is decline in the value of the fixed tangible assets. In other words, we can say depreciation is a permanent, gradual and regular decline in the book value which a fixed asset is considered to suffer over a period of time on account of various causes. यानी सिंपली बात ये कह रहा है कि depreciation एक बुक वैल्यू को डिक्लाइन करता है, किसी भी एसेट की बुक वैल्यू को डिक्लाइन करता है, परमानेंट डिक्लाइन करता है, ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है, रेगुलरली डिक्लाइन करता है। जब हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं, चाहे टाइम के कारण ये वैल्यू घटती है, यू कैन सी दैट विद एग्जांपल 1 ईयर 2 ईयर टाइम के अकॉर्डिंग ये घट रहा है, लाइफ भी देख रहे हैं इसमें आप, और एनी अदर रीजन, और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसके कारण हमारी एसेट्स की वैल्यू घटती है। उस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डेप्रिसिएशन। सो लेट्स वी मूव टू द फीचर ऑफ द डेप्रिसिएशन। As you can see on your screen, the characteristics of depreciation or the feature of the depreciation. The above definition brings to light the characteristics of depreciation are as follows. The first one, depreciation is charged in respect of fixed assets only. ये पहली बात याद रखनी है कि depreciation सिर्फ किस पे चार्ज होगा, fixed assets पे चार्ज होगा, fixed current assets पे चार्ज नहीं होगा। You know very well what is fixed assets. Any asset which are purchased for the taking a service or for the production purpose. Number second, any asset which are purchased for the production, not for the resale. यानी फिक्स एसेट्स क्या होती है, जिसे हम खुद परचेस करते हैं। सपोज मैंने मार्कर परचेस किया है, मैंने व्हाइट बोर्ड परचेस किया है, क्या इसको बेचने के लिए परचेस किया है? नहीं, इसे सर्विस लेने के लिए परचेस किया है। अगर हमने मार्कर या बोर्ड खरीदा होता फॉर द रीसेलिंग पर्पस, सो इट इज टर्म्ड एज अ नॉन करंट एसेट्स, सॉरी इट इज टर्म्ड एज करंट एसेट्स। बट फिक्स एसेट्स का मतलब होता है एनी एसेट विच आर परचेस फॉर द सेल्फ यूज, विच आर परचेस फॉर द टेकिंग अ सर्विस और फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। लाइक हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? प्रोडक्शन के लिए। बाइक क्यों खरीदते हैं? मोटरसाइकिल क्यों खरीदते हैं? ड्यू टू द टेकिंग अ सर्विस। नंबर सेकंड, इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, नॉट द मार्केट वैल्यू। ये भी बात याद रखनी है कि डेप्रीशिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इट मींस उसकी बुक वैल्यू में इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होगी। हो सकता है कि आपके पास जो एसेट्स हो वो बहुत ही अनअवेलेबल प्रोडक्ट हो, सो उसकी बुक वैल्यू जरूर कम होगी लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू हाई होगी, बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटी इन द मार्केट में काफी कम है। Number third, the reduction in the book value of an asset is permanent, gradual and continue nature। यानी जो बुक वैल्यू घटेगी वो परमानेंट नेचर की होगी, ग्रेजुअल नेचर की होगी और कॉन्टिन्यूइंग नेचर की होगी। Once the value of the asset is reduced due to the depreciation, it cannot be restored to its original cost। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी एसेट की अगर वैल्यू घटती है डेप्रीशिएशन के कारण, तो उस वैल्यू को हम फिर ओरिजिनल कॉस्ट पर लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमेशा घटेगी, बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है, बुक वैल्यू कभी इंक्रीज नहीं होगी। ओके, द फोर्थ फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेप्रीशिएशन इज depreciation is a continuing process during the effective useful life of the assets, either due to the regular wear and tear or due to the expiry of life. Yes,
डेप्रीशिएशन एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है जो कि किसी भी एसेट की इफेक्टिव यूजफुल लाइफ पर चार्ज किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5 ईयर की एसेट्स है, उसकी लाइफ है और 50,000 में खरीदा, तो हर ईयर आपको कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ रहा है, 10,000। सो ये एसेट्स के जो डेप्रीशिएशन है, जो वैल्यू घट रही है, वो या तो रेगुलर वियर एंड टीयर के कारण घट रही होगी या एक्सपायरी ऑफ टाइम। रेगुलर वियर एंड टीयर मतलब रेगुलरली यूज के कारण। जब आप किसी पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करते हो रेगुलरली मोड पे, तो उसकी वैल्यू घटती है, उसकी एज वेल एज उसकी लाइफ भी एक्सपायर होती है। सपोज मैंने कोई एसेट्स खरीद लिया और उसको घर में ला के रख दिया, उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या उसकी बुक वैल्यू नहीं घटेगी? घटेगी। अगर आपने उसको लेकर आए हो फॉर रीसेलिंग पर्पस तो नहीं घटेगी, लेकिन अगर आपने किसी प्रोडक्ट को घर पे लेकर आए हो खुद को यूज करने के लिए, उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या उसकी वैल्यू नहीं घटेगी? घटेगी, क्योंकि वो एक्सपायरी ऑफ टाइम हो रहा है ड्यू टू द इनोवेशन। इनोवेशन के कारण अगर आपने एक मोबाइल खरीद लिया और उसको यूज नहीं करो, डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, क्या उसकी वैल्यू नहीं घटेगी? अभी मार्केट में जाओ बेचने के लिए, कम वैल्यू पे रीसेल होगा। क्यों? क्योंकि उससे लेटेस्ट वर्जन के, लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल्स उसी प्राइस लेवल पे आ चुके होंगे मार्केट में। तो ड्यू टू द इनोवेशन, ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी भी आपकी एसेट्स की वैल्यू घटती है। सो एक्सपायरी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो फॉर द रिस्पॉन्सिबल टू द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। सो बेसिकली वी कैन से दैट डेप्रीशिएशन लगने के बेसिकली दो कारण होते हैं, रेगुलर वियर एंड टियर, रेगुलरली यूज के कारण, या फिर किसी भी एसेट्स की एक्सपायरी ऑफ लाइफ के कारण। नंबर 5th पॉइंट इज, it is not the process of valuation of asset, it is a process of allocation of the cost of the assets to the period of its life। इसको मैं समझाता हूं आपको। the very famous thing कि depreciation is process of valuation और process of value allocation, ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि depreciation is process of valuation or process of allocation। So I want to frankly say to you, depreciation is a process of allocation। बेसिकली डेप्रीशिएशन लगाने का मेन मोटिव ये होता है कि हम एसेट्स की वैल्यू ना निकालें, बल्कि एलोकेट करें फंड्स को, पैसे अरेंज करें कि जब वो एसेट्स यूजलेस हो जाए तो हमारे पास सफिशिएंट फंड हो कि हम उस एसेट्स को फिर से रीपर्चेस कर सकें। सपोज हमने 50,000 रुपीज की एसेट्स खरीदी, कोई भी एसेट्स परचेस की, और उसकी जो लाइफ है वो है 5 ईयर के लिए। ओके, सपोज वी परचेस एसेट्स ऑफ रुपीज 50,000 फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। एंड यू नो वेरी वेल कि 5 साल बाद वो एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो एसेट्स यूजलेस हो जाएगी। तो यू हैव अ एसेट्स, यू हैव अ मनी, कि आप, नहीं तो आपका काम तो रुक जाएगा। इफ यू हैव अ बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन हो, अगर आपका काम रुक जाएगा तो आपको हैवी लॉस बियर करना पड़ जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए हर साल पैसे जुटाएं। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितना दिखाया, 40,000। आपने 10,000 फर्स्ट ईयर क्या मान लिया, डेप्रीशिएशन मान लिया। दूसरे साल भी डेप्रीशिएशन लगाया, कितना, 10,000। आज उसकी वैल्यू क्या हो गई, थर्ड ईयर उसकी वैल्यू क्या हो गई, 20,000। इस साल भी 10,000 डेप्रीशिएशन। फोर्थ ईयर भी आपने डेप्रीशिएशन कितना लगाया, 10,000। आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। और फिफ्थ ईयर में उसकी वैल्यू जीरो हो गई, और अभी डेप्रीशिएशन आपने कितना चार्ज किया, 10। यू कैन सी दैट इन द 5 ईयर यू कैन टेक द डेप्रीशिएशन ऑफ रुपीज 50,000। आपने 50,000 रुपए का डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया। और पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, डेप्रीशिएशन इज अ एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है, कंपल्सरी एक्सपेंस है, इसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हो। तो यू कैन सी दैट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उतने में डीप में मत जाओ, बस इतना याद रखो कि व्हेन वी कंपनी कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, when any firm or company calculate its profit or loss during the year, so he will take the depreciation as a expense। वो depreciation को अपना expense मांगती है, तो हर साल उसका 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 करके 5 साल में 50,000 रुपए खर्च हो गया। अब ये 50,000 रुपए किसी को देना नहीं पड़ा है, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 पढ़ो, डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इज डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ द कैश। यानी जो 10,000 रुपए आप डेप्रीशिएशन चार्ज करो, ये पैसा आपको किसी को देना थोड़ी ना है, ये फर्म ऑटोमेटिक अपने पास जुटा रही है कि एट द एंड ऑफ द 5 ईयर कंपनी के पास कितना रुपए जुट जाए, 50,000 रुपए जुट जाए।
50,000 रुपए जब उसके पास अरेंज हो जाएंगे तो आफ्टर 5th ईयर जब उसकी एसेट्स जीरो हो जाएगी, जब उसकी एसेट यूजलेस हो जाएगी, तो फॉर द नेक्स्ट ईयर उसके पास 50,000 है, 50,000 इन्वेस्ट करे एंड देयर आफ्टर वो अगेन एक नई एसेट्स परचेस कर सके। प्लीज ये टॉपिक को बार बार रिवाइंड करके देखना। ये इट इज अ टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन वर्सेस प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। जनरली लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। नो, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन बिकॉज ऑफ कोई भी फर्म डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं चार्ज करती कि उसे अपनी एसेट्स की वैल्यू पता चल सके, बट वो इसलिए चार्ज करती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर वो हर साल पैसे अरेंज कर सके, एलोकेट कर सके फंड्स को, कि ताकि आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, आफ्टर द लाइफ ऑफ द एसेट्स, they have a sufficient fund to repurchase such kind of the assets. And you can see that the point number 6 and 7 automatically cleared from the point number 5 कि depreciation is expense, ये expense है, इसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करते हो तो आपकी प्रॉफिट कम हो जाती है। सपोज अगर आपकी प्रॉफिट 50,000 है, 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो आपकी प्रॉफिट कितनी होगी? 40,000। एक्चुअली में आपकी प्रॉफिट 50,000 रुपए, लेकिन आपने 10,000 रुपए किस चीज का उसमें चार्ज कर लिया? डेप्रिसिएशन का। अब आपके पास 10,000 रुपए जुट गए, कलेक्ट हो गए, कि जब एसेट्स खराब हो जाएगी उस 10,000 रुपए से आप जाकर नई एसेट्स खरीद लोगे। और ऐसे ही आप हर साल करोगे तो 5 साल बाद आपके पास 50,000 कलेक्ट हो जाएंगे एंड आफ्टर द 5 ईयर you can purchase the new assets in the place of the old assets, because this assets can be ineffective, can be useless after the 5 year. And depreciation is a non-cash expense because it does not involve any outflow of the cash। ये 10,000 रुपए ऐसा नहीं कि उठा के कंपनी किसी को दे देती है, बल्कि अपने पास ही रखी रहती है। किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से, कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स he can purchase, it can purchase a new assets for the firm, by which company cannot suffer, company could not force to stop the production activity of the business. So we can see that all the 7 features of the depreciation can be easily understandable and easily help to you understand the concept of the depreciation. So let's we move to the next topic of this chapter. The last topic of this video, that is a depreciation and other related concept. So you can see the image on your screen. The first topic related to this chapter, that is a depreciation, you know very well. Depreciation means decrease in the value of book value of tangible fixed assets due to the they are used in business affects the passage of time और obsolescence। यानी depreciation का मतलब होता है किसी भी tangible fixed assets की वैल्यू में गिरावट आना, डिक्लाइनमेंट आना। किस रीजन से आना? पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के बीतने के कारण, या ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी और एनी अदर थिंग्स। द सेकेंड टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ डिप्लेशन। What is the meaning of the depletion? So it is very important part for you. The term depletion is used to express the decrease in the value of mines, oil, wells, etc. due to their use. When minerals are extracted from the mines, their mines value get exhausted. Such a gradual exhaustion of assets is termed as depletion. So basically ये छोटा सा term याद कर लीजिए, what is depletion? Depletion means decrease in the value of wasting assets. Please note down in your copy what is depletion. Depletion means decrease in the value of wasting assets. Okay. Depletion means decrease in the value of wasting assets. What is the wasting assets? It is a very famous assets. You can see that कुछ ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू गिरती रहती है ड्यू टू द प्रोडक्शन। सो यू कैन सी द कोल माइंस, ऑयल वेल्स। तो आप कोल माइंस को हमेशा एग्जॉर्ट करते रहते हो, तो उसकी वैल्यू जितना कोल्स निकलता जाता है उतना ही उसकी वैल्यू घटती रहती है। सो द वेस्टिंग एसेट्स
के टर्म में डिप्लेशन यूज होता है. डिप्लेशन आर रिलेटेड टू द वेस्टिंग एसेट्स, एंड वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल क्या क्या है? ऑयल वेल्स, कोल माइंस. ओके, एंड द टर्म्स you know very well. When minerals are extracted from the mines, their minerals value get exhausted, and such gradual exhaustion of termed as depletion. So the next point, the next term is amortization. You can see the name of the tangible and intangible assets. Tangible assets mean any asset which can be touched, see, or valued, and intangible assets means any asset which cannot be see, touch, or valued. Basically, intangible assets are those assets which cannot be see or touch but can be valued in the monetary terms. And when any kind of the reduce in the value of the intangible asset, it is known as the amortization. So what is amortization? Amortization is the process of writing off intangible assets such as goodwill, patent, trademark or license in the profit and loss account or the statement of profit and loss account in case of company. यानी जनरली अगर कंपनीज के केस में देखा जाए तो कंपनी अपने इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस को राइट ऑफ करती है. राइट ऑफ मतलब उनकी वैल्यू को डिक्लाइन करती है, और ये सच डिक्लाइनमेंट विल बी नोन एज द डेप्रीशिएशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एमोर्टाइजेशन. डेप्रीशिएशन किसके केस में यूज होता है? मैं एक समरी चार्ट आपके लिए बना देता हूं आपकी हेल्प के लिए. ओके, so when we are talking about the terms, the first term is depreciation. Depreciation are related to the fixed tangible assets. Okay, number second is depletion. डिप्लेशन किस एसेट से रिलेटेड होती है? वेस्टिंग एसेट्स. एंड नंबर थर्ड, amortization. What is amortization? Writing off the value of the intangible assets, यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और अदर काइंड ऑफ नो हाउ, अदर काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू राइट ऑफ होती है, डिक्लाइन होती है कंपनी के केसेस में, सो इट इज नोन एज अ एमोर्टाइजेशन. एमोर्टाइजेशन किस केस में होता है? इंटेंजिबल एसेट्स के केसेस में होता है, which cannot be seen or felt but can be valued. Number 4 is obsolescence. It refers to the decline in the economic value of the assets due to the innovation or improved technique, change in the taste or fashion or inadequacy of the existing assets due to the improved demand. ये बहुत ही फेमस टर्म है ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस क्या होता है? जनरली हम एसेट्स की वैल्यू की गिरावट देखते हैं, एसेट्स की वैल्यू की कमी देखते हैं. किस रीजन से? ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट, फैशन. तो इस कारण से भी हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होती है. सो ये टर्म नहीं है, बेसिकली एक कॉजेज है, कॉजेज ऑफ द डेप्रीशिएशन. सो बेसिकली ये वर्ड बहुत ही फेमस है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में दिया हुआ है. बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं डेप्रीशिएशन से रिलेटेड. प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न इट कि डेप्रीशिएशन किससे रिलेटेड है, डिप्लेशन किससे रिलेटेड है, अमोर्टाइजेशन. एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस मीन्स किसी भी एसेट्स की वैल्यू इनोवेशन के कारण, टेक्नोलॉजी में चेंजेस के कारण, टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फैशन के कारण, या जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसमें कुछ कमी है. जैसे सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कलर टीवी. कलर टीवी के बाद एडवांस टीवी आई, कलर टीवी विथ रिमोट. फिर एडवांस टीवी आई, कलर टीवी विथ वॉल टीवी. वॉल टीवी में एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर अब आ गए. सो यू कैन सी दैट कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी जो भी एसेट्स है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है ड्यू टू द ऑब्सोलेंस. व्हाट इज ऑब्सोलेंस? ड्यू टू द इंप्रूव टेक्नोलॉजी, इनोवेशन. यही मैं मोबाइल के केसेस में आपको बता रहा था. जनरली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में ऑब्सोलेंस सबसे ज्यादा यूज होते हैं. और अगर हम लैपटॉप्स के केसेस में बात करें, विंडोज, इसके प्रोसेसर्स की, इंटरनल स्पेस की,
एक्सटर्नल स्पेस की, तो उस बेसिस पे भी हम जनरली हम अपनी पुरानी एसेट्स की वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है, जो बुक वैल्यू, वो भी डिक्लाइन होती है। सो ऑब्सोलेंस मे बी ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। ऑब्सोलेंसेस किस रीजन से होते हैं? चेंज इन द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, कंपनी ने पहले जिस मेथड से प्रोडक्शन करी थी उसमें चेंजेस आ गया हो। चेंज इन द प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया हो। चेंज इन मॉडल, change in the demand of the product, but depreciation is a graduate fall in the usefulness of a fixed asset with the passage of time or use। ये depreciation से अलग क्यों है? बिकॉज ऑब्सोलेंस क्यों होता है? टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण, इनोवेशन आने के कारण, चेंज टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज होने के कारण, या एग्जिस्टिंग एसेट्स में कोई कुछ चीजों में चेंज होने के कारण, कुछ सपोज कोई वर्जन चेंज हो गया, कोई भी एडवांस फीचर आ गया, ये सारी चीजें एक साथ तो नहीं होती ना, हमेशा तो नहीं होती। ये सारी चीजें प्री डिटरमाइंड भी नहीं होती। बट डेप्रीशिएशन जो होता है प्री डिटरमाइंड होता है, परमानेंट, कॉन्टिन्यू एंड ग्रेजुअल फॉल इन द यूजफुलनेस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स होता है। सो दैट्स व्हाई डिप्लेशन, amortization एंड ऑब्सोलेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रीशिएशन, बिकॉज डेप्रीशिएशन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप एसेट्स को यूज करो या ना करो, चाहे आप एसेट्स चाहे एसेट्स का टाइम बीत जाए, एसेट्स की यूजफुल लाइफ कम हो जाए, तब भी डेप्रिसिएशन लगता है। चाहे न्यू टेक्नोलॉजी आए या ना हो, आपके इस एसेट्स की वैल्यू कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो और टाइम भी बीत रहा है। सो यू कैन सी दैट इन टूडेज